Today we will start revision of chapter 1. Chapter name is rational and irrational numbers. Rational and irrational numbers. सबसे पहले बच्चे इनकी डेफिनेशन देखो. चैप्टर का नाम क्या है? रैशनल एंड इरेशनल. जब तक हमें रैशनल और इरेशनल नहीं पता हम इसको नहीं कर सकते. कौन सी बुक में से कर रहे हैं हम? सालिना कंसाइज बुक में से. रैशनल एंड इरेशनल. सबसे पहले रैशनल नंबर की डेफिनेशन. यस शौर्या. शौर्या, what do you mean by rational number? Sir, the number which can be written in the form of P and Q, P upon my Q, where P is an integer and Q is not equal to 0. P and Q are integer and Q is not equal to 0. The number which can be written in the form P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. मतलब नीचे वाली टर्म कभी जीरो नहीं आ सकती. इंटीजर तो all of you know very well. Aditya. Yes, sir. What do you mean by integers? So integers, set definition रहता है वैसे. सब ब्लर हो गया. एक सेकंड बच्चे. इंटीजर्स. यस आदित्य नहीं पता बेटा. Set definition नहीं पता. बस कुछ नहीं. डेफिनेशन में कुछ भी नहीं है. ऑल पॉजिटिव, जीरो एंड all negative countable numbers. 0 and all negative countable numbers are called integers. For example, minus infinite से लेके बच्चे -4, -3, -2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 up to infinite. All are integer. 0 is neither positive nor negative. 0 ना तो पॉजिटिव होता है बच्चे ना नेगेटिव होता है. बट these are also called integers. अब रैशनल नंबर की एग्जांपल. P अपॉन Q इंटीजर है ना. जैसे मैंने 7 अपॉन लिख दिया 11. दिस इज रैशनल. यस. -3 अपॉन 2. रूप, दिस इज रैशनल और नॉट? Rational. Rational. Yes, this is also rational. -3 is integer, 2 is also integer. आर्या, Yes, अकेला नंबर 7 लिख दिया. This is Yes, sir. rational or not? sir है. Why? Sir, because 7 के नीचे 1 रहता है. Yes. कोई भी नंबर है उसके नीचे 1 तो होता ही होता है ना. 1 is optional. Yes, sir. 1 लगाओ ना लगाओ. मतलब 7 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है. 1 is optional. 7 और 7 upon 1 is the same thing. Yes, it is also integer. Oh, sorry, rational. 0. Mehak, 0 is a rational? No, sir. Yes. 0 के नीचे कुछ कोई मर्जी नंबर लगा लो बच्चे, 0 ही आता है ना. Yes, it is also rational. Mehak? Yes, sir. याद नहीं था. 1 की याद जगह नहीं 0 करना होता बच्चे. तब 0 भी इंटीजर है, रहता. 1 भी इंटीजर है. बच्चे बीच में मत बोलो प्लीज. मैं अपने आप पूछूंगा ना. प्रशांत. यस सर. देखो जिनको सब मतलब मेरे को लगता है कि तुम अगर 18 स्टूडेंट्स हो ना अभी इस टाइम, 18 में से 15 को आता है. सिर्फ 3 बच्चों के लिए तुम्हारी रिवीजन हो रही है. अंडरस्टूड? इसलिए बीच में मत बोलो प्लीज. उतना ज्यादा टाइम लगेगा जितना बीच में बोलोगे. अकेला -3 नंबर है जो, नमन, रैशनल है कि नहीं है? सर -3. हाँ. सर है. यस. -3 इज आल्सो अ रैशनल. नीचे इज 1 लगा सकते हैं. 7 upon 0. अन्वेषा, it is rational or not? Sir, no. Because क्यों क्या है नीचे डिनोमिनेटर.
नो इट इज नॉट अ रैशनल, नीचे जीरो नहीं आ सकता। ओके और पी Yes, एंड sir. क्यू, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर टू बी इंटीजर्स। यहाँ इंटीजर है बट क्यू एक्सेप्ट क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर। अब बच्चे कुछ पॉइंट्स हैं। नेचुरल नंबर्स, अर्जुन व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल नंबर्स? Sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 infinite are Yes. natural. पॉजिटिव इंटीजर भी बोल सकते हैं ना हम इनको, नेचुरल नंबर को। Yes, sir. Yes, 1 2 3 4 up to infinite, all these are called natural number. And Arjun, all these natural number are also rational or not? Yes, sir. Yes, also rational, but vice versa is not true. All natural numbers are rational, but all rational are not natural. Why? As like 7/11, ये rational है but ये natural नहीं है। Yes, sir. नहीं है ना, मतलब एक पॉइंट आ गया, all natural numbers are rational, yes, but all rational are natural, no, vice versa is not true. Understood? Vice versa is not Yes, true. sir. All natural are rational, but all rational are not natural. That is up whole numbers. Divanshu, what do you mean by whole numbers? Gurshan, Sir, 0, 1, 2, 3, and so on. 0 1 2 3 and so on up to infinite. Divanshu, 0 is rational? Yes, sir. Yes, 1 2 3 सारे के सारे rational है ना, क्योंकि इसके नीचे सबके नीचे 1 लिख सकते हैं, means whole number starting with 0 0 1 2 3 4 and so on. Or we can say non-negative integer, because 0 is neither positive nor negative and all these are positive. whole number कौन से, whole number को क्या बोल सकते हैं, और non-negative integer भी बोल देते हैं। all whole numbers are rational or not? सारे के सारे whole number rational हैं? Yes, sir. Yes, but vice versa, all rational are not No. whole numbers. For example, same वही 7/11 rational है but whole नहीं है। Understood? मतलब ये 1 mark questions हैं। all natural numbers are rational, yes, but all rational are not natural. all whole numbers are rational, but vice versa is not true, means all rational numbers are not whole. Understood? Yes. Now irrational number definition बच्चे देखो, इंटीजर की डेफिनेशन पता चल गई, उसके बाद हमें इसकी पता चल गई, नेचुरल नंबर की पता चल गई, होल नंबर की पता चल गई। नाउ वी गेट इरेशनल नंबर्स, डेफिनेशन ऑफ irrational numbers. Irrational numbers, Mehak, what do you mean Yes, by sir. irrational number? What do you mean by irrational number, बच्चे? Ipshita, Irrational number is the number where नहीं आती। Ipshita, Yes, sir. irrational number की definition Sir, square roots and cube roots are चांटा known as. पड़ेगा तेरे। So समय क्यों sir? रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है? ओनली रैशनल। Sir, Q is equal to 0. पूछा है Numbers तेरे that- से? यस इप्शिता, Sir, the numbers that can be expressed in the form of p by q, where q is not equals to 0. वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, उसके अंदर उसी डेफिनेशन के अंदर सिर्फ नॉट लगाना है, द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म, ये है डेफिनेशन, द नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन। बाकी सारी की सारी डेफिनेशन रैशनल नंबर वाली है।
P upon Q, where P and Q are integer and Q is not equal to 0. मतलब देखो जैसे as like for example √3 नीचे वाले डाल सकते हैं, ये तो P upon Q की फॉर्म में हो गया इप्सिता, फिर ये रैशनल होना चाहिए था, बट ये तो इरेशनल है. क्यों है? Sir, because root है sir. Because √3 is not an integer. Yes sir. तभी तो. Understood? ये रीजन देना है, रूट है ऐसे नहीं बोलना, ये बोलना है कि बिकॉज √3 is not an integer. इंटीजर होने चाहिए तभी वो रैशनल होगा. √5, √7, √9. यस क्या है खुशागरा? Yes, sir. √9 is irrational or rational? Sir, sir, rational. Why? Sir, because when sir, √9 is equals to 3. Yes, √9 can be written as 3 into 3 ना. पेयर में से स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर सबने किया है, तो रूट खत्म हो गया. √9 is also written as root only 3 ना, तो this is rational not irrational. तो 3 क्या है? रैशनल है, इरेशनल नहीं है. मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट हैं जो, वो ऑल क्या होंगे? रैशनल होंगे. अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर की डेफिनेशन या एग्जांपल, 1 का स्क्वायर 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 25, 36 एंड सो ऑन. इन सबके जो स्क्वायर रूट हैं वो क्या होंगे? रैशनल होंगे. बट जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 3, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ये सारे क्या हैं? एंड सो ऑन आर इरेशनल. अंडरस्टूड? समझ आया बच्चे? ये महक, Yes, sir. जोया, Yes, sir. ओके. मींस इरेशनल है, रैशनल नंबर का पता चल गया ना डेफिनेशन का. Yes sir. नाउ डेसिमल फॉर्म. डेसिमल फॉर्म बच्चे अच्छी तरह समझ लेना है क्योंकि इसका यूज होगा. जोया, फर्स्ट चैप्टर किया हुआ है ना तूने? Yes, sir. तो डेसिमल की कितनी टाइप्स होती हैं? Sir, decimal की sir 2 types होती हैं. अच्छा, Yes, sir. Terminate. 3 नहीं होती? Can I? 3 होती हैं बच्चे. 3 टाइप्स आर देयर. Can I? नहीं, So मैं नो, जिससे पूछूं बच्चे उसी ने बोलना है. सुखजिंदर, पता है बच्चे कौन कौन सी 3 टाइप्स होती हैं? No, sir. नो. शौमिल, शौमिल, Sir. कितनी टाइप 3 टाइप्स होती हैं? कौन कौन सी होती है पता है बच्चे? डू यू नो? No, sir. ओके. विराज, Yes, sir. 3 types. Which one? Terminating, non-terminating, and non-terminating, repeating decimals. Terminating पहली टाइप. सेकंड टाइप Yes, क्या sir. है? Non-terminating. नो, गलत है. So non-terminating but repeating. फिर मैं मेरे को साथ में ले जाना एग्जाम में, No, मैं sir. बता No, sir. दूंगा. decimal fraction. या बच्चे डेसिमल फ्रैक्शन और डेसिमल इज द सेम थिंग. ओके. सेकंड टाइप नॉन टर्मिनेटिंग बट But रिपीटिंग Yes, sir. और रिकरिंग. एक ही बात है, रिअकर और रिपीट. थर्ड टाइप Non-terminating, non-repeating. नॉन टर्मिनेटिंग, Non-repeating. नॉन रिपीटिंग. अब देखो टर्मिनेट का मीनिंग एंड. टर्मिनेट का मीनिंग होता है एंड. नॉन टर्मिनेट का जिसका नॉट एंड. नॉन टर्मिनेटिंग नॉट एंड, मतलब जिसका एंड हो दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग. जिसका एंड नहीं होता दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग.
रिपीट करे तो मतलब रिपीटिंग होगा, नहीं रिपीट करेगा तो सर? नॉन रिपीटिंग होगा। हाँ जी बेटा, सर सेकंड वाले को सर रेकरिंग कह सकते हैं? बोला तो है, रिअक्रिंग, ठीक है, रिअक्कर और रिपीट। रिअक्कर का मतलब बार बार, रिपीट का मतलब ही क्या है, सेम, यस और नो? Yes, sir. यस सर। रिपीटिंग और रिअक्रिंग बोला है, ध्यान से ना सुना करो, रिअक्रिंग और रिअक्कर दैट इज द सेम थिंग। अब टर्मिनेटिंग, जिसका एंड हो, फॉर एग्जाम्पल 7/2 ले लिया, इसको डिवाइड करो, 7 अंदर आएगा, 2 बाहर आएगा, 3 2s are 6, 1 0, क्योंकि डेसिमल लगा दिया तो एक जीरो हर एक स्टेप में आएगा ही आएगा। डेसिमल में चेंज करना तो आता है ना सुखजिंदर, शामिल? Yes sir. Yes sir. 5 2s are 10, कट हो गया, पूरा पूरा कट हो गया, क्या आंसर आ गया? 3.5, मतलब पूरा क्रॉस आ गया नीचे। तो 3 फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या होगी टर्मिनेटिंग की, एज लाइक 3.5। और कोई एग्जांपल लिख देते हैं 7.125, कोई डॉट नहीं, कोई बार नहीं, कोई कुछ नहीं। और कोई एग्जांपल 17.32, चाहे डेसिमल के बाद 1, चाहे 3, चाहे 10, जितने मर्जी प्लेस हो, बट एंड हो रहा है ना, तो वो कौन सी टाइप है? टर्मिनेटिंग है। अब दूसरी टाइप की एग्जांपल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसकी एग्जांपल लेता हूं बच्चे मैं, 7/3 ले ली, डिवाइड करो, 7 अंदर 3 बाहर, यही होगा ना, न्यूमरेटर अंदर डिनोमिनेटर बाहर, 3 2s are 6, 1 डेसिमल लगा दिया 0, 3 3s are 9, अगेन 1, हर एक स्टेप में 0 तो आएगा ही आएगा, 3 3s are 9। सर एक मिनट बच्चे प्लीज, एंड्स ऑन, सारी उम्र लगे रहो, बट ये कभी खत्म नहीं होगा। Yes, sir. 3 3 3 3 3 आता रहेगा ना। हाँ आप पूछो बच्चे। सर एक बार टर्मिनेटिंग फिर से बता दीजिए। टर्मिनेटिंग का मतलब एंड, यहाँ डिवाइड किया, देखो बच्चे, आगे कोई डिजिट आएगा, डेसिमल 5 आ गया, उसके बाद कोई डिजिट आएगा? नो सर। तो वो टर्मिनेट, एंड हो गया ना, दैट इज टर्मिनेटिंग, जिसके अंदर आगे कोई डिजिट और ना आए, खत्म हो जाए, सर एंड हो सर जाए। अपन ये बोल सकते हैं जिसका रिमाइंडर ना बचे। वो तो डिवाइड करके है ना, हम तो सीधी एग्जांपल जैसे ये लिखी है मैंने, ये तो सीधी एग्जांपल्स लिखी ना, तो ये तो शो करने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए किया था बच्चे डिवाइड, अदरवाइज वहां डिवाइड नहीं करना, वहां सीधा होगा, ठीक है? कोई बात नहीं, एक्सप्लेनेशन करूंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा सारा। जो तीसरी टाइप है बच्चे, पहले अब 2 टाइप्स, तीसरी को मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। जो फर्स्ट 2 टाइप्स हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, दोनों को दोनों क्या है? रैशनल है। दोनों टाइप्स क्या है? रैशनल। तभी मैंने यहाँ बीच में लिख दिया, इस साइड से भी एरो लगा दिया, इस साइड से भी एरो लगा दिया, कि मतलब टर्मिनेटिंग को भी P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग को भी लिख सकते हैं। यही था ना? देखो ध्यान से, टर्मिनेटिंग कैन आल्सो, देखो 7/2 मैंने एग्जांपल ली थी, तो जो P अपॉन Q फॉर्म ही है, और इसको डेसिमल में चेंज किया तो टर्मिनेटिंग आ गया। ऐसे ही बच्चे 7/3 को डिवाइड किया, 2.3333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे डॉट 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 3 टाइम्स या 4 टाइम्स डॉट लगा दो, मतलब एग्जांपल इसकी 2.333 डॉट डॉट डॉट, डॉट नहीं लगे होंगे तो वो टर्मिनेटिंग बन जाएगा, इसलिए डॉट लगाने जरूरी है। या और बच्चे जो रिपीट कर रहा है डिजिट, डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट कर रहा है, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। मतलब जब यहाँ पे डॉट ना लगे हों, मतलब 2.33 ही लिखा होता, आगे डॉट ना होते, दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग बन जाता, या बार ना लिखा डाला होता तो वो टर्मिनेटिंग बन जाता। अंडरस्टूड? मतलब डॉट्स और बार लगाना जरूरी है, कंपल्सरी है। किसकी फॉर्म में? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग फॉर्म में। यहाँ पे कभी क्रॉस नहीं आएगा ना, रिमाइंडर बचता ही रहेगा ना हमेशा, और सेम रिमाइंडर आ रहा है, देखो 1 1 1 1, फिर 0, फिर 9, फिर 3, फिर 1 0 3 एंड सो ऑन। ये दोनों टाइप्स रैशनल है। अब जो तीसरी टाइप है,
non-terminating, non-repeating. This type is irrational. ये कौन सी टाइप है? irrational है. इसकी बच्चे कोई एग्जाम्पल, सौभाग्य, give me example of non-terminating, non-repeating. No one? Sir, may I give? नहीं बच्चे प्लीज ना बोलो, मैं अपने आप पूछ रहा हूँ ना. Okay, sir. ठीक है. प्रतीक, सौभाग्य साइलेंट मेंबर है, प्रतीक कभी कभी बोल देता है. इरेशनल बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की कोई एग्जांपल? देखो नेम से शो हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, जिसका एंड ना हो. सर 3.4 बस. ये तो नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये तो एंड हो रहा है, ये तो टर्मिनेटिंग टाइप है. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके अंदर बच्चे कुछ पैटर्न्स हैं. पैटर्न कैसे हैं? 4 के साथ 1 लगा दिया, फिर 4 लगाया, 2 टाइम 1 लगा दिया, फिर 4 लगाया, 3 टाइम 1 लगा दिया, एंड सो ऑन. मतलब 4 1 आ रहा है बट एक 1 एक्स्ट्रा आ गया, 4 1 1 आ रहा है बट 1 एक्स्ट्रा आ गया. हाँ जी बच्चे. सर हम 7.2323 ऐसे भी हो सकता है. 2 3 आगे, 23 आगे फिर डॉट डॉट. नहीं, वो ये टाइप बन जाएगी. 2 3 2 3 2 3 रिपीट कर रहे हैं ना बार बार, यस सर. तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप बन जाएगी बच्चे. रिपीट कर रहे हैं ना 2 3 2 3. यहाँ देखो 4 1 रिपीट किया बट 1 एक्स्ट्रा आ गया एक और. यहाँ एक 1 था, यहाँ 2 1 हो गए, फिर 3 1 हो गए 4 के साथ, फिर आगे 4 4 1 हो जाएंगे एंड सो ऑन. और एग्जांपल हाँ इसमें 2 3 2 3 1 2 3 2 2 3 3 इस टाइप से बच्चे लगा देंगे तो वो ये टाइप बन जाएगी. देखो 2 3 के साथ 1 आ गया, फिर 2 3 के साथ 2 आ गया, फिर 2 3 के साथ 3, फिर 2 3 के साथ 4, फिर 2 3 के साथ 5 एंड सो ऑन. तो वो ना तो रिपीट कर टर्मिनेट है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो एंड हो रहा है और ना रिपीट कर रहा है. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप. ओके. और कोई एग्जांपल जैसे 7.10 100 100 एंड सो ऑन. और कोई एग्जांपल 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 एंड सो ऑन. काउंटिंग लिख दी मैंने. सर कभी फिर से 1 2 3 आएगा? नहीं आएगा ना. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर पाई भी इसी टाइप में आता है. कौन सा? सर पाई. पाई. पाई की वैल्यू जो बच्चे हम 22/7 और 3.14 यूज करते हैं, दैट आर अप्रोक्सीमेट वैल्यूज, नॉट एग्जैक्ट. अप्रोक्सीमेट वैल्यूज होती है. पाई जो है दैट इज ऑलवेज इररेशनल, ऑलवेज इररेशनल. पाई एक मूवी आई थी, याद है? देखिए किसी ने? यस सर, लाइफ ऑफ पाई. यस लाइफ ऑफ पाई, यस सर. है ना? उसके अंदर देखा था उसने क्या किया था, कितने प्लेसेस तक डेसिमल में फाइंड किया था पाई की वैल्यू को. उसका नाम Yes, कभी उसको sir. पाई रखा था ना उसका नाम. यस सर. तो पाई का कभी जब मतलब प्रॉपर वैल्यू इसकी कभी आएगी नहीं, ये एंड रिपीट करेगा ही नहीं. ओके. सर लाइफ ऑफ पाई इरफान खान. यस. सर शेर इरफान वाली. यस सर इरफान खान था. हाँ, वही सेम. दैट इज ऑलवेज इररेशनल. अंडरस्टूड? पाई को याद रखना है, अपने दिमाग में बिठा लो कि पाई इज ऑलवेज इररेशनल. जो 22/7 या 3.14 वैल्यू यूज करते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, नॉट एग्जैक्ट. ओके. अब बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का पता चल गया ना. इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते. इन दोनों टाइप्स को लिख सकते हैं, वो एग्जांपल्स में तभी ली थी मैंने स्टार्टिंग में. डेसिमल की फॉर्म, डेसिमल फ्रैक्शन, इसीलिए इसको डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं. इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. रैशनल नंबर मतलब P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते. दिस इज ऑलवेज इररेशनल. जो थर्ड टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट इज आल्सो इररेशनल. हमेशा रूट वाली वैल्यू इररेशनल नहीं होती. इस टाइप के डेसिमल में इस टाइप की वैल्यूज भी क्या है? इररेशनल है. अंडरस्टूड? समझ गए?
क्या नहीं समझे? Excuse me, sir. हाँ जी, सर हमने जो थर्ड डेसिमल की टाइप ली थी ये था नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, हाँ बट जी सर बेटा। इसमें 3.4141 वो तो बार बार रिपीट हो रहा है। कहाँ वो रिपीट हो रहा है? 4-1 कहाँ आ रहा है फिर से? ओह 4-1 4-1-1 आ रहा है, फिर 4-1-1 आ रहा है। so मतलब फिर ऐसे इसको हम नॉन रिपीटिंग कहते हैं। तभी तो बच्चे, रिपीट का मतलब क्या होता है? 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1 4-1। तो और जैसे कोई इसमें डिजिट? आ रहा है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग में 333। हाँ, उसमें 4-1 4-1 4-1 आता। मतलब सर अगर हमने एक 1 के बाद एक 0 लगाया और फिर 1 के बाद हम 2 0 लगाएंगे तो वो नॉन रिपीटिंग होगा। हाँ जी बेटा, ये रहा Okay. देखो। काउंटिंग, डेसिमल के बाद काउंटिंग शुरू कर दी। काउंटिंग कभी एंड होगी? सारी उम्र लगे रहो काउंट करने में, खत्म नहीं होगा ना कभी। फिर से कभी 1 2 3 4 5 6 आएगा? नहीं आएगा। तो दैट इज आल्सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कुछ पैटर्न्स हैं उसी पैटर्न्स में बच्चे। अब एक चीज और, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल है वो एक कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। कंडीशन क्या सेटिस्फाई करता है? प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। सबसे पहले तो पी एंड क्यू, देखो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं ना टर्मिनेटिंग को, ये लिखा है मैंने। टर्मिनेटिंग को भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं। जो क्यू है इसके लिए, टर्मिनेटिंग के लिए, विदाउट लॉन्ग डिवीजन डेसिमल में चेंज किए बिना हम फाइंड कर सकते हैं कि वेदर इट इज टर्मिनेटिंग और, मतलब पहली दोनों टाइप्स में से कौन सी टाइप है। ये अपॉन क्यू नंबर दे दिया कोई हमें, रैशनल नंबर, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है? एक मेथड तो है डिवाइड करके, डेसिमल में चेंज करके, जैसे ये किया था। दूसरा मेथड पी एंड क्यू, पी एंड क्यू जो है, क्यू जो है बच्चे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पी एंड क्यू जो है लोएस्ट टर्म में होने चाहिए। लोएस्ट टर्म मतलब आगे कट नहीं होने चाहिए। ये ना हो कि ये कट हो रहे हैं और हम फिर भी क्यू के, मतलब कट के बिना ही क्यू के प्राइम फैक्टर बना रहे हैं। प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू इज इन द फॉर्म टू द पावर a into 5 the power b, where a and b are natural numbers, और सॉरी होल नंबर्स। होल नंबर को मैंने कुछ और भी बताया था, क्या लिख सकते हैं? सर नॉन नेगेटिव इंटीजर। यस, चाहे होल नंबर लिख दो चाहे नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख दो, क्योंकि जीरो आ जाता है ना, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं इसको। अब मैं ना इसकी काफी सारी एग्जांपल्स लूंगा, टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर की भी और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर बट रिपीटिंग रैशनल नंबर की भी। अब इसके अंदर भी एक कंडीशन है, जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है उसके अंदर भी कंडीशन है कि जो क्यू है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ, पहले तो पी एंड क्यू लोएस्ट टर्म में होने चाहिए, उसके बाद प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आल्सो हैव फैक्टर्स अदर देन 2 and 5। मतलब 2 and 5 चाहे हो, बट 2 and 5 के बिना भी कोई ना कोई फैक्टर होगा। प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आल्सो हैव फैक्टर्स अदर देन 2 and 5, 2 and 5 के बिना। अंडरस्टूड? फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले ही ले रहा हूं बच्चे सिर्फ। ये 6 एग्जांपल्स दिए हैं मैंने। देखो पहले तो ये चेक करो कि ये कट तो नहीं हो रहे 7 and 8, नहीं हो रहे नो ना? सर। नो सर। कुशाग्रा, Yes, 7 sir. एज लाइक 8 के प्राइम फैक्टर्स क्या बनेंगे? Sir, 2 into 2 into 2. मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना? Yes, sir. चलो मैं पहले प्राइम फैक्टर बनाता हूं सबके, उसके बाद चेक करेंगे हम। 16 2 की पावर 4 3
सिर्फ डिनोमिनेटर के, कट तो नहीं हो रहे, नहीं हो रहे। 25 के 5 का स्क्वायर, 17 अंकित 50 के, Yes, sir. 50 के प्राइम फैक्टर्स Sir, क्या बनेंगे? 2 into 5 into 5. 2 की पावर 1, 5 की पावर 2 ना, Yes, sir. Excuse me, कट sir. हो रहे हैं नहीं हो रहे? 13 20 के फैक्टर्स 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1, ये कट हो रहे हैं, पहले इनको कट करना है। 3, मैंने ये एग्जांपल इसीलिए ली है, 3/10, 3 10 के फैक्टर्स 2 की पावर 1 5 की पावर 1। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा, सर अगर हम उसके फैक्टर्स नहीं आ पा रहे डिनोमिनेटर के तो कैसे होगा? कैसे? सर अगर जैसे डिनोमिनेटर के फैक्टर नहीं आ पा रहे तो वो प्राइम नंबर ही होगा बच्चे, जब उसके प्राइम फैक्टर आ ही नहीं रहे वो प्राइम नंबर ही होगा ना। जैसे 3/7 आ गया मान लो, या 17 आ गया, इसके फैक्टर क्या बनाएगा 17 के? नहीं बनेंगे ना। 17 इज ऑलरेडी अ प्राइम नंबर। यस सर। अब डिनोमिनेटर में क्यू के जो प्राइम फैक्टर P/Q फॉर्म होती है ना, क्यू के जो प्राइम फैक्टर है अकेला 2 बेस है, प्राइम नंबर 2 आ रहा है, तो ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा डेसिमल। इसमें भी 2 आ रहा है नीचे, दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। इसमें अकेला 5 आ रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स में अकेला 2 आ जाए, अकेला 5 आ जाए, 2 and 5 कंबाइंड आ जाए, तो वो कौन सी टाइप होगी? टर्मिनेटिंग। Yes, sir. दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग, दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग, दिस इज आल्सो टर्मिनेटिंग। अब मैं बच्चे अब एग्जांपल लेता हूं और नाउ मोर एग्जांपल्स आर देयर। 7/30, 7/90, और एग्जांपल ले लेता हूं मैं 9 ले 70 ले लेते हैं, 11/55 55 नहीं 56 ले लेते हैं, चलो कुछ भी ले सकते हैं। 7, ये कट तो नहीं हो रहे ना? नहीं हो रहे ना कट? 7 and 30, No, sir. नो सर। तो 30 के महक फैक्टर्स क्या बनेंगे? Sir, 2 into 2 into sir 2 into 3 into 5 ही बनेंगे ना? yes sir. यस ना? घबराया मत कर, बोला कर। यहाँ पे क्या होगा? गलत हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, बट एग्जाम में गलत हो जाएगा तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब यहाँ देखो 2 and 5 चाहे आ रही है, बट एक्स्ट्रा 3 प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो ये डेसिमल की सेकंड टाइप हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। But ओके, कौन सी टाइप हो जाएगी? Yes. सेकंड टाइप। 7/90 नहीं कट हो रहा, 90 के फैक्टर्स 2 की पावर 1, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1, यही आएंगे ना? Yes, sir. यस सर। आर्या कौन सी टाइप है? Non-terminating but repeating. खाना नहीं देते घर वाले? आर्या सर देते हैं, फिर ऊंची बोल, सर वो तबीयत ठीक नहीं है। फिर ऊंची बोल तो बोल ही सकती है, यस सर। बोला करो बच्चे। देखो कॉन्फिडेंस, ऊंची बोलोगे ना तो कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा, अदरवाइज नहीं बोलोगे तो शांति रह जाओगे, चुप्पी रह जाओगे। 70 अर्जुन, 70 के फैक्टर्स। सर 70 के, एक सेकंड सर। खाना तेरे को भी नहीं देते मेरे को लगता है घर वाले। यस सर। 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 35 बच गया, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। यस सर।
तो ये कौन सी टाइप है डेसिमल की? सर टर्मिनेट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। 2 and 5 चाहे आ रहे हैं बट 7 एक्स्ट्रा आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग और रिपीटिंग टाइप। अब 11/56 है। 11 56 के फैक्टर्स बनाते हैं। 2 28 2 14 2 7 2 का क्यूब इंटू 7 की पावर 1। Can I? सुखजिंदर सुखजिंदर Can I? एक्सक्यूज तेरे मी से मैं सर, पूछूंगा ही नहीं, जितना मर्जी कहना ही करता रहे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कब होगा? देखो बच्चे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को मैं P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ? नो सर। तो उसको P अपॉन Q कैसे हो जाएगा? वो फर्स्ट टू Okay. टाइप्स में से ही होगा ना। जब उसको P अपॉन Okay. Q की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते तो वो ऐसे आ ही नहीं सकता। वो तो एक फॉर्मेट Okay. याद ही रखना पड़ेगा हमें कि नॉन Okay. टर्मिनेटिंग जिसका एंड भी ना हो और वो रिपीट भी ना करे। समझे? यस सर। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन सॉरी बट रिपीटिंग है। जो तीसरी टाइप है उसको मैं अपॉन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकता। दैट्स व्हाई सिर्फ जब भी कोई रैशनल नंबर दिया होगा वो या तो टर्मिनेटिंग होगा या क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। ये कभी हो ही नहीं सकता वो, बिकॉज फर्स्ट टू टाइप्स हैं जो वो रैशनल हैं, उनको हम सिर्फ P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। अंडरस्टूड? इसमें तो Yes, बस sir. पैटर्न ही याद रखने पड़ेंगे। आगे समझ? एक्सक्यूज मी Yes, सर। sir. हाँ जी बेटा। सर जो √2 √3 और √5 की वैल्यू होती है वो टर्मिनेटिंग है नॉन? वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। √2 √3 √5 जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ओके सर। वो कभी एंटर नहीं होता उनका, नीचे रिमाइंडर बचता ही बचता है। ठीक है ना? जितना मर्जी उसको करते रहो, चाहे 3 प्लेसेस तक, चाहे 10 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक फाइंड कर लो, तो भी वो खत्म नहीं होगा। ओके सर। Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को सर जब हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो सर कैसे लिखेंगे? इसी फॉर्म में बच्चे। ओके सर। सपोज चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एक्सक्यूज मी सर। एक सेकंड बच्चे, उसका आंसर दे दूं पहले मैं। राइट 3 irrational numbers between 3 and 4। 3 and 4 के इन बिटवीन 3 irrational numbers बताने हैं हमने। अब 3 and 4 के बीच में कोई भी एक डेसिमल नंबर बता कुशागरा। सर 3 and 4 के बीच में डेसिमल नंबर तो लिख ही सकते हैं कोई ना कोई। यस सर। सर कोई भी बता दे जो इनके इन बिटवीन लाई करे। 3.1 3.2 3.3। यस सर। अगर मैं 3.2 लिखता हूं तो वो रैशनल है, या बार लगा देता हूं तो भी वो रैशनल है। बट उन्होंने क्या पूछा है? इरैशनल। तो जैसे मैंने 3.2 एक नंबर इनके बीच में लिख दो, उसके पीछे पैटर्न बना दो 01 001 0001 डॉट डॉट डॉट। दिस इज द फर्स्ट रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। कोई और एग्जांपल 3.3 ले लिया, 12 13 14 15 and so on। This is a second irrational number। और कोई एग्जांपल जो इनके बीच में लाई कर रहा हो? सर मैं बताऊं एक? 4। हाँ जी बोलो सर √10। बच्चे, वो रूट में नहीं, मैं डेसिमल में कर रहा हूँ ना बात। अभी ओके मैं सर। उसको ये समझा रहा हूँ, √10 है इनके बीच में, √11 अच्छा सर। √12 √13 √14 वो सारे इरेशनल हैं। बट मैं डेसिमल की फॉर्म में बता रहा हूँ कि इसका क्या यूज है, क्यों इसको, मतलब कहाँ सर पे आ 3.410010 45 ऐसे डाल दिया सर। ठीक है, एंड सो ऑन। यस सर। हाँ जी बच्चे अभी बोलो, पूछो क्या पूछ रहे थे कोई और? सर कल संडे में क्लास होगी? हाँ जी
होगी? ओके सर, आप डाउट क्लास ओके में सर। डाउट अभी तेरे डाउट खत्म नहीं हुए विराज? नहीं सर, मतलब एक्स्ट्रा क्लास, सॉरी। और सर कल सुबह 10 चैप्टर ही होगा ना, 10th वाला? हाँ जी हाँ जी, मॉर्निंग जो इवनिंग क्लास है ना उसमें ही रिवीजन होगी ओनली। ओके ओके। सर। हाँ संडे Thank you. को ये हो सकता है कि मैं कोई और टाइम रख लूं, क्योंकि इवनिंग में कहीं घूमने चले जाते हैं फैमिली के सर साथ। हाँ जी बेटा, सर सर, सुबह सुबह 8 का तो o'clock मेरा- कर लेना। 8 o'clock हाँ नहीं हो सर। सकता, ऑफलाइन बच्चों को बुलाया हुआ है मैंने। सर 7 o'clock ठीक है। सर 1 o'clock रख लेना सर। 7 o'clock ठीक। देखूंगा, अपने आप देखूंगा। तुम्हारी कोई क्लास तो नहीं है ना कल किसी नो की? सर। सर पहले अपने 4 मत कीजिएगा, मेरा टेस्ट है एसएससी यूनिट टेस्ट। कितने बजे? सर कौन से टाइम क्लास? 12 to 4। 12 to 4 संडे को? यस सर। तुम्हें कंप्लेंट करनी पड़ेगी तुम्हारे स्कूल वालों की कि संडे को भी पढ़ा रहे हैं। सर सुबह 10 या 11? हाँ देख लूंगा बच्चे। और सर हमारा ना सिलेबस मिल चुका है। सर संडे को सुबह 7 बजे नहीं उठा जाता। कौन बोला? सर जोया। जोया, पापा का, तेरे पापा का नंबर है मेरे पास, वो उठा देंगे, कोई बात नहीं। नहीं उठा जाता तो? सर वो खुद 4 बजे उठ जाते हैं। हाँ तभी तो कह रहा हूँ, वो उठा देंगे तेरे को। सर मुझे भी 5 बजे उठा देते हैं। अच्छी बात है, तुम्हारी सर, लाइफ है बच्चे। देखो पेरेंट्स ने कुछ नहीं लेना तुमसे, उनको ये है कि उनके बच्चे हैं जो सेट हो जाएं, बढ़िया इंसान, मतलब इंसान, अच्छे इंसान बन जाएं। पढ़े लिखे होंगे तो अच्छे इंसान अपने आप बन जाएंगे। अंडरस्टूड? सर हमारा ना सर सिलेबस मिल चुका है। यस एब्सोल्युटली। पता है मुझे, सिलेबस सबको मिल चुका है, तभी तो ठीक है। रिवीजन स्टार्ट किया अभी। सर ये जैसे आपने 3.4100 उसमें हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं? कुछ भी, बस रिपीट नहीं करना चाहिए। ले Okay. 3.4 क्या लिखूं बता? 5 6 6 6 5। 5 6 5 6 6 ऐसे इस पैटर्न में लिखना है बस से बस, समझे? ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर हम 5 6 7 5 6 8 ऐसे लिखेंगे? हाँ जी हाँ जी, एक ही बात है बताओ। ओके सर। 3.5 6 7 8 9 10 11 सर ऐसे लिख देंगे तो? हाँ जी हाँ जी, वो भी सही है, करेक्ट है वो भी। नाउ बच्चे हम फर्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज, क्योंकि बेसिक नॉलेज जरूरी थी। ये इंट्रोडक्शन ना होती तो एक्सरसाइज चाहे हम 2 कर लेते आज, बट तुम्हें कभी भी समझ नहीं आना था वो। ओके, जो वीक हैं थोड़े से स्टूडेंट्स, उनको कभी समझ नहीं आएगा था। यस सर। इसलिए बच्चे मैंने ये इंट्रोडक्शन या मतलब सारा कुछ समझाया है। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी आज। बहुत छोटी एक्सरसाइज है 1A। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मैं सुबह भी क्लास कर सकता हूँ ज्वाइन? हाँ जी, सबके लिए है बच्चे, वो सर तुम्हारे उसमें नया कोर्स कराते हैं सर, मतलब उसमें आगे? न्यू सिलेबस चल रहा है बच्चे, जो इनका हो चुका है ना ऑल स्टूडेंट्स का। ओके सर। अदरवाइज वो भाग जाएंगे कि हमने तो किया हुआ है सारा, हम क्यों करें फिर से। अंडरस्टूड? यस सर। सारे बच्चों को देखना है बच्चे। ओके सर। ओके, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं 3 मंथ हो गए हैं, उनको तो छोड़ नहीं सकता ना मैं। फर्स्ट सम बच्चे, इज 0 अ रैशनल नंबर? हाँ जी बेटा। सर इससे मेरे ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम हो रहा है सर, एक बार लास्ट वाला समझा सकते हैं सर प्लीज? लास्ट वाला कौन सा, ये वाला? यस सर। बच्चे ऐसे करना, मैं वीडियो Yes, अपलोड करूंगा, उसमें से Okay, चेक कर लेना, क्योंकि हमारा टाइम इतना हमारे पास नहीं होता कि मैं बार बार उसी चीज को रिपीट करूं। सर Okay? मेरे ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम हो रहा है, इससे मैंने कहा था। अच्छा ओके सर, मैं देख लूंगा आपकी वीडियो। हाँ, वो मैं ग्रुप में Thank भेज you, देता हूँ लिंक उसका, अपलोड Yes. करके ना। सर वो तो मैं चेक भी कर लूंगा। थैंक यू सर। Is 0 a rational number? Can it be written in the form P upon Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0? Yes, Sukhjinder. Sukhjinder. Mehak. यस Is 0 a rational number? यस सर। Yes. बस 2 बार yes ही लिखना है। Yes.
हमने किया था ना अभी स्टार्टिंग में रैशनल नंबर में जीरो के नीचे कोई भी नंबर लगा दें तो वो रैशनल है. Is zero yes, 0 is a rational number. Rational. Can you write it in the form? Yes, we can Yes, write it in sir. the form P upon Q P- where सारी लाइन लिख देनी है अब क्वेश्चन में से लिख के देख के लिख दोगे ना. Yes, sir. यस सर हो जाएगा. Second, are the following statement true or false? Give reason for your answer. Every whole number is a natural? No. False है. पहला पार्ट false है. कौन सा होल नंबर नेचुरल नहीं होता? आर्या, आर्या, कौन सा Yes, sir. होल नंबर नेचुरल नहीं होता? Sir, 0. जीरो. रीजन, रीजन पूछा ना. सेंस जीरो इज the only whole number which is not natural, which is not natural. Understood? यस सर. Yes, sir. Sir. Second, every whole number is a rational? True. True. Fourth, third, every integer is a rational? Sir, true. Yes. चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है उसको p अपॉन क्या इंटीजर है. जैसे -3 नीचे तो 1 है ही है ना. मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया था पहले ही. Yes, sir. अभी भी समझ नहीं आएगा तो वो समझ आ नहीं सकता किसी को. Every rational number is a whole number? False. False. For example, 7 upon 10 is a rational number which is not whole. Not whole. अब थर्ड सम. ये सम तो बच्चे तुमने लास्ट क्लासेस में भी किए होंगे. अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग. सर. Also find the difference between the largest and the smallest of these rational number. Express this difference as a decimal fraction correct to one decimal place. चलो एक सम थर्ड एंड फोर्थ में से मैं एक सम करवा देता हूँ. थर्ड करवा देता हूँ, फोर्थ तुमने अपने आप करना है. सेम है. रूप, what we can do? Sir, LCM लेंगे. एलसीएम ले लेंगे. कितना आएगा? सर 36. यस 36 आएगा. जिसको नहीं लेना आता बच्चे वो छोटे बच्चों की तरह एक बार ऐसे कर लेना. ठीक है? Okay. क्योंकि ऑल सारे के सारे इंटेलिजेंट नहीं होते. एक मिनट बच्चे, मैं 10th वालों को मैसेज डाल दूं कि क्लास है तो मैसेज पे मैसेज डाले जा रहे हैं. सर एक सेकंड बच्चे. एक सेकंड बस. हाँ जी बच्चे अभी आओ. हाँ जी Yes, क्या sir. पूछ रहे? सर मैं कह रहा था सर मेरे बुक में डिफरेंट सम है सर. मतलब बुक तो सेलिना की है सर लेकिन डिफरेंट है सम कुछ कुछ. बच्चे तुम्हारी जो बुक है यस सर. कौन सा एडिशन है? सर लेट मी चेक. ये एडिशन रिवाइज तो नहीं है, 2020 वाली है सर. तो मेरे रिवाइज्ड है तो आई अच्छा, थिंक यस सर. इसके अंदर ये होगा बच्चे. ओके ओके सर. ओके सर. 36 इज एलसीएम. 9 को किससे मल्टीप्लाई करें 36 आ जाए? 4 into -5 -20. -20. 12 को 3 into 7 21. 12 into -2 -24. 18 3 2 into 11 22. सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? असेंडिंग ऑर्डर में बोला था ना उन्होंने. सबसे स्मॉलर कौन सा है विराज? -24. यस. नेगेटिव में जितनी बिगर होती है उतनी स्मॉलर होती है. किससे बना? -2/3 सबसे पहले आएगा ये सिंबल. सेकंड वन -20 -5/9. फिर 21 7/12. फिर 11/8. बस अब चुप रहे विराज.
ये आगे। अब क्या बोला उन्होंने, also find the difference between the largest is this one minus smallest is this one, तो -2/3 ऐसे लिखना है, यहाँ आगे लिख देना डिफरेंस इज इक्वल टू दिस, इन दोनों का एलसीएम 18 आ गया, 1 11 माइनस माइनस प्लस 6 6 टू द 12, ऐड किया वी गेट 23/18. आल्सो express this difference as a rational number fraction correct to 1 decimal place. 18 बाहर, 18 1 जा 18, 5 आ गया 0, डेसिमल लगा दिया, 18 3 2 जा 36, 14 1 0, 18 को बच्चे किससे करें 7 पे, 126 कितने डेसिमल प्लेस बोला है, 1 डेसिमल प्लेस बोला है ना, तो एक मतलब ज्यादा पे कर लेंगे हम, 2 डेसिमल प्लेसेस पे कर लिया, 1.27 आ गया ना. अब 7 राउंड ऑफ करेंगे क्योंकि उन्होंने ओनली 1 डेसिमल प्लेस तक बोला है. राउंड ऑफ का मतलब लास्ट डिजिट है जो 5 और मोर देन 5 होगा तो उससे पहले वाला डिजिट 1 इंक्रीज हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1.3 सर. 1.3 अभी फोर्थ सम हो जाएगा, भी राउंड ऑफ होगा ना. यस हाँ जी सर. हाँ जी. सर हो जाएगा. फिफ्थ सम हमने ऑलरेडी कर चुके हैं वैसे तो, विदाउट डूइंग Yes, एनी sir. एक्चुअल डिवीजन find each of the following rational number have terminating decimal representation. 7/16 कट नहीं हो रहे, 7/2 की पावर 4, so this is terminating. बस ये लिखना हो है. जाएगा 23/125, 23/5 क्यूब, टर्मिनेटिंग. अकेला 5 है, टर्मिनेटिंग. इस टाइप से बच्चे 9/14 नहीं कट हो रहे, नॉन 7. टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग. रिपीटिंग नहीं, उन्होंने पूछा ही नहीं नॉन रिपीटिंग का, टर्मिनेटिंग का. उन्होंने तो सिर्फ ये बोला है कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग Sir. है, तो हम क्या लिखेंगे नॉट टर्मिनेटिंग. अंडरस्टूड. यस सर Yes, sir. सारे पार्ट्स हो जाएंगे. यस सर हो Yes, जाएंगे. sir. चलो यही Sir. होमवर्क है बच्चे तुम्हारा. सर कल क्लास का टाइम बता दीजिए. मॉर्निंग 7. ओके सर. एक्सक्यूज मी. Thank you, उसके बाद sir. बच्चे डिसाइड करूंगा Thank you, कि sir. कौन. एक्सक्यूज ओके मी बच्चे, थैंक यू हाँ जी सर. बेटा, Bye, sir. बाय बच्चे बाय. थैंक यू सर. सर 2 चैप्टर और कैरी फॉरवर्ड करवा दीजिए. कैसे समझ नहीं आया बच्चे मुझे, तेरी ना आवाज बहुत स्लो आ रही है. सर मेरे सर फर्स्ट टर्म में ऑलरेडी 11 चैप्टर्स थे सर, 2 चैप्टर और कैरी फॉरवर्ड करवा दिए. कौन कौन से? सर 4th एंड 5th. 4th and 5th आएंगे नहीं इस बार? सर इस बार वो भी आएंगे सर, पहले नहीं आने थे, पहले उसके अलावा आने थे सर 11 चैप्टर्स सर. वो अब तो कर 13 लिया अपनों ने. चलो फिर अच्छी बात है, तूने किए हुए हैं. सर 18 19 चैप्टर भी आएगा आज मैम ने बताया. 18 19 भी किया हुआ है ना. बहुत सारे चैप्टर्स हैं. 19 किया है, 18 नहीं मैंने किया. मैं ना इसीलिए बोलता होता हूँ कि जो अभी सिलेबस हो रहा है कर लो, और कई बच्चे होते हैं नहीं हमें तो आएगा नहीं सिलेबस में इस बार, ये नहीं होगा. अब पछताओगे ना. अब जिसने 4th चैप्टर नहीं किया होगा प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी ना उनको. 4th चैप्टर sir. 2 बार सर, 4th की नहीं सर 5th वाली है सर. 5th की लास्ट एक एक्सरसाइज नहीं की सर, 2 शायद. तूने क्यों नहीं की फिर? करनी थी उस टाइम. सर अगले दिन चलो. एग्जाम तो आनी नहीं थी. चल बच्चे टाइम हो गया मेरी नेक्स्ट क्लास का. ओके बाय. थैंक See यू you सर. tomorrow. बाय सर.